have come to appreciate and applaud Gandhigiri. Now, every Indian can do Datagiri, which is an opportunity. All voice calls for Jio customers will be absolutely free. By March 2017, we will cover 90% of India's population. Jio is the first mobile network in the country that is only 4G LTE. I believe that these are the absolute lowest data rates anywhere in the world. The onus is rightly on the incumbent operators not to misuse their market power by creating unfair hurdles when it comes to providing point of interconnect between their network and Jio's network. नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मार्केट्स अपने आप को अगर आप देखें तो इस वक्त बिल्कुल स्टेबल सिचुएशन में रखे हुए हैं और आई थिंक आज की सबसे बड़ी घटना थी रिलायंस की एजीएम, और रिलायंस की एजीएम शायद इसे एक संकेत दे सकते हैं हम, रिलायंस जियो की एजीएम। और इस बीच रिलायंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें ऑलमोस्ट डे लो पर, एक इवेंट क्लोज होने के बाद ये अक्सर इस स्टॉक की प्रॉपर्टी रही है एट डे लो पर, उसके बाद यू टर्न लेता है। आज भी एक बार फिर से यू टर्न में है। बिल्कुल, चलिए इस बीच अभी एक बड़ी खबर आई है। फिच की तरफ से एक बयान आया है। रिलायंस जियो ने जो टैरिफ प्लान्स अनाउंस किए हैं उसके बाद फिच ने ये कहा है कि भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए उनका आउटलुक नेगेटिव है। इस समय की सबसे बड़ी खबर, फिच ने ये कहा है कि इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए उनका आउटलुक नेगेटिव है और रिलायंस जियो के जो टैरिफ हैं वो जितनी बाजार की आशंका थी उससे 25 से 30% कम है, सस्ते हैं और इसका इम्पैक्ट बाकी टेलीकॉम प्लेयर्स पर भी पड़ेगा। हमारे साथ इनफैक्ट खास बातचीत के लिए इस समय राजन मैथ्यूज जुड़े हैं। राजन जी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फिच का बयान आपने अभी सुना, शुक्रिया। एंड यू नो वी हैव सीन द वे मार्केट्स हैव आल्सो रिएक्टेड। सो व्हाट इज योर रिएक्शन? ठीक है, जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि इससे कंपटीशन बढ़ेगी, मार्केट ग्रो होगा, पर जो प्राइजेस रिलायंस जियो ऑफर कर रहा है उससे compete करना कितना वायबल होगा बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए? So first of all, we want to congratulate RIL Jio on a very successful announcement. And so I think they've laid out simple plans, affordable plans, a vision of a great network, applications that can meet the needs of the consumer, all of which is very, very positive for the industry. To your point in terms of the tariff points, I think by and large, if you look at the various points at 19 rupees per gigabit, that is at the low end and that will be difficult for some operators to match. But as you move up to 499 rupees, all right, per month, if you look, the average user today pays us 180 rupees. So getting 499, 500 rupees from the same customer on average is not a bad thing for the industry. बट लेकिन सर आई मीन ये मैथ्यूज, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट रिलायंस जियो ये शायद एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए इसमें क्या है? आई मीन कितनी नेगेटिव फैक्टर्स हैं? आई मीन कैश फ्लोज पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा? और दूसरी चीज़ सर, रिलायंस जियो के बाद आपको लगता है कि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होगा? आपको लगता है इस बात की गुंजाइश है काफ़ी? So I think very clearly the RIL entry means that operators have to be large companies, well-heeled companies with substantial financial resources to be able to invest in the network and services for the customer. So that is very clear. So the smaller companies will increasingly find it difficult to continue to offer their services in a competitive basis. So already we've seen consolidation, and most of the consolidation is around RIL, RCom, Aircel, MTS have already all got together. That leaves the three other major operators, Airtel, Voda, Idea, and a regional player which is Telenor. Videocon has almost gotten out of the market. So consolidation has already taken place. So going forward, I think the issue is going to be around the pricing and the uptake. If the total market increases, then that is good for all of the industry. If people fight over
the component pieces and the market goes down, that is not good. So appropriate pricing is what is going to be the need of the hour going forward. इस बीच भारतीय एयरटेल की तरफ से भी एक बयान आया है. भारतीय एयरटेल ने ये कहा है दैट वी वेलकम रिलायंस जियोज एंट्री एंड वी विल फुलफिल ऑल रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस. ये बड़ी खबर भारतीय एयरटेल की तरफ से अभी अभी बयान आया है कि रिलायंस जियो का वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्वागत करते हैं और जो भी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस हैं उसे ऑब्वियसली, ये तो खैर इट गोज़ विदाउट सेइंग कि सारे जो भी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस हैं उन सभी को फुलफिल किया जाएगा. बट मिस्टर मैथ्यूज़, नाउ यू नो वन क्वेश्चन एंड अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन विच कम्स टू माइंड इज वन, जैसे इन्होंने खुद प्रॉमिस किया है कि जहाँ पे भी नेटवर्क होगा 4G नेटवर्क होगा, देयर विल बी नो कॉल ड्रॉप्स. एंड थर्ड, एक बार कस्टमर्स की संख्या बढ़ेगी, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री वेल, जो कैपेसिटी इन्होंने इंस्टॉल की है या फिर जो रोल आउट ये कर रहे हैं कैपेसिटी, इसमें क्या वाकई इतना सीमलेस और एरर फ्री ऑफरिंग हो पाएगा रिलायंस जियो का? So I did not hear Mr. Ambani say that there will be no drop calls. I think I heard him say that there will be minimal drop calls, because I think in a wireless network you cannot have zero drop calls. That's just the nature of it. So I think you will have a minimum number of drop calls. I think other operators are also enhancing their network, putting in more cell towers, putting in more coverage. So drop calls will be a matter of the past. I think the future is about speeds, capacity, type of applications, and the price points at which the customer will enjoy services. And I think this is going to be what is going to define the successful operators from the not successful operators. चलिए, इस बीच एक और खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, मिस्टर हेमंत कनौरिया जुड़े हैं बात करने के लिए इस बीच श्रेय ग्रुप से. मिस्टर कनौरिया, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है. आज की तारीख में सर, आज की रिलायंस की एजीएम, रिलायंस जियो की एजीएम है, आप कह सकते हैं ऐसे. और आई थिंक जो टैरिफ्स, जो प्लान्स और आई थिंक जो सर्विसेज लेके आ रही है, इसने ऑलमोस्ट, आप देखिए शायद सन 2000 में जब हमको एक फ़ोन करने में और फ़ोन रिसीव करने में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी, उस वक्त आपका ऑलमोस्ट इनकमिंग के पैसे ख़त्म हो गए और आज आपका वॉइस टेलीफोनी फ्री हो गया, एग्जैक्टली रिलायंस जियो के साथ. सर, ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बड़ी घटना है और इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे इसके? नहीं, देखिए, कोई भी सर्विसेज यदि पब्लिक को प्रोवाइड किया जाए और मार्केट में कस्टमर्स को एट ए रीज़नेबल कॉस्ट, वो हमेशा ही अच्छा रहता है. उसमें खाली यही देखना चाहिए कि जो भी है एक कॉस्टिंग उसका प्रॉपर करके करना चाहिए, जिससे कि जो लोग को सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं वो सस्टेनेबल बेसिस पर हो. ऐसा नहीं हो कि आज कम दाम हो जाए फिर बाद में बढ़ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम और दिक्कतें हो जाती है. तो एक हमें लगता है कि ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी से ला रहे हैं, कॉस्ट वगैरह भी कम रहेगा. और कोई भी सर्विसेज पब्लिक को यदि ऑन अ लार्ज स्केल यदि सही दाम में दिया जाए तो सभी के लिए अच्छा है. ओके, मिस्टर मैथ्यूज, आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा. आई मीन, ये जो रिलायंस का कदम था, रिलायंस जियो का, कि वॉइस टेलीफोनी को आपने फ्री कर दिया. आई मीन सर, देयर इज ए कॉस्ट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग एंड एवरी सर्विस. क्या ये रिलायंस जियो का कदम ठीक है? भाई, आपने भी जो पैसा लगाया, आपको उस पर रिटर्न हासिल करनी है, आपको बिजनेस को वायबल बनाना है. ये इनकी एंट्री रिलायंस जियो की विद वॉइस टेलीफोनी फ्री को फ्री कर दिया, ये क्या सही कदम लगता है आपको इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सर? So, first of all, as you rightly pointed out, there is no free lunch in anything. If you look at the offering, the tariff offering for RIL, it offers a bundled offer. So, they are saying either at 19 rupees or 49 rupees or 499 rupees, you're getting X gigabits. And you as the end user can use those gigabits either for data or for voice, all data, all voice, or some combination. So obviously there's a price that has to be allocated to the voice component. So it's not free. So therefore operators will be able, if they offer only voice, they will be able to present it to those customers who only want voice and who only have maybe a feature phone at a price point that is competitive to what RIL is offering.
राइट, ऑल राइट मिस्टर मैथ्यूज, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ मिस्टर कनोरिया बने हुए हैं। मिस्टर कनोरिया, आज देखिए, इन अ वे इट्स अ रेवोल्यूशनरी डे एज फार एज टेलीकॉम स्पेस इज कंसर्न, बट एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड एज अ कॉर्पोरेट, ये जो आज अनाउंसमेंट हुई है, क्या इसे आप इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर मानते हैं? अभी कुछ समय पहले मिस्टर आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया और उन्होंने यही कहा कि ये एक रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है रिलायंस की तरफ से, जो कि भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री की सूरत को हमेशा के लिए बदल देगा। आपका व्यू क्या है? ये डेफिनेटली, मतलब कि ये जो एक नई टेक्नोलॉजी से, नए दाम से जो सर्विसेज ऑफ़र किए जाएंगे पब्लिक को, तो उसमें डेफिनेटली चेंजेस होंगे। और आपने जैसे कहा था कि पहले 10-15 साल पहले हम लोग देखें कि किस तरह से वॉइस के लिए और टेलीफोन में बहुत प्रॉब्लम होते थे, मतलब 20 साल बता दें, लेकिन उसमें जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आए उसके कारण से पूरा एक रेवोल्यूशन हुआ। अभी वापस एक रेवोल्यूशन होगा। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू कंटिन्यूसली रेवोल्यूशन इमिनेंट है। ओके मिस्टर कनौरिया, एक और चीज़ है, मैं कुछ देर में आपके पावर बिजनेस, पावर कारोबार को लेकर भी बात करूंगा, लेकिन वो कंपनियां इस वक्त जिनके पास टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन तरीके से क्या इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, और उस पर जो रिटर्न्स थी उनकी, वो रिलायंस जो जैसे प्लेयर्स आने के बाद वो पहले से कहीं अच्छी हो पाएंगी, आपको लगता है? नहीं, डेफिनेटली सभी को कोशिश करना पड़ेगा कि किस तरह से वो अपने कॉस्ट को कम करें, नए टेक्नोलॉजीज़ वगैरह लेकर आए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए हैं उसका यदि मैक्सिमम यूसेज हो गया है तो फाइन, नहीं हुआ है तो उन्हें नए इनोवेटिव वेज से सोचना पड़ेगा, बिकॉज कंपटीशन कभी रुकेगी नहीं और इनोवेशन भी नहीं रुकने वाली है। तो सभी सेक्टर्स में इनोवेशन और कंपटीशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और जो भी बिजनेसेस हैं उनको उससे अब्रेस्ट रहना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि नई टेक्नोलॉजिकल, जब जैसे पावर सेक्टर में ही आप सोलर में देखिए, आज 7-8-10 साल में किस तरह से कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पावर प्लांट्स वगैरह कम हो गए हैं, और वही थर्मल पावर प्लांट्स में बढ़ गए हैं। तो इसी के कारण से वो टेक्नोलॉजी चेंजेस कंटिन्यूस हैं, इसमें कहीं पर भी कोई स्टैग्नेंसी नहीं आने वाला है। बिल्कुल। चलिए मिस्टर कनौरिया, आपने पावर स्पेस की बात की, इसी पर बात करते हैं, बिकॉज आज आप जुड़े भी हैं हमारे साथ इस खास मौके पर। तो ये जो डील आपकी इंडियन पावर कॉर्प और यूनिपर इनके बीच जो हुई है, और इसके तहत जो जेवी बनाया जाएगा इंडिया यूनिपर पावर सर्विसेज, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये इंडिया पावर हमारी जो 6 साल से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में है, डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, ये वैसे तो 97 साल पुरानी कंपनी है, डिशेगर पावर बोलकर कंपनी के नाम थी। तो जो हम लोग उसको एंड्रे यूल से टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू लिए थे 2010 में, और अब हम उसमें हमारे इंटीग्रेटेड यूटिलिटी की मॉडल है। यूनिपर जो है बहुत बड़ी जर्मन कंपनी है, जो 100 साल पुरानी कंपनी और वन ऑफ द लार्जेस्ट जर्मन पावर कंपनीज़ हैं, जो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में बहुत सालों से इन्वॉल्व हैं। और वो क्या किए हैं कि ये जो मार्केट है जिस तरह से डेवलप किया है जर्मनी में, जहाँ सोलर, जर्मनी में 10 साल पहले से ही सोलर का बहुत बड़े रूप में इंस्टॉलेशन हुआ है, जो इंडिया में भी हो रहा है। तो किस तरह से ग्रिड को मैनेज किया जाए, किस तरह से पावर प्लांट्स को मैनेज किया जाए, एमिशन कंट्रोल किस तरह से एफिशिएंट वे में किया जाए, तो यूनिपर की ये सब एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस हैं। तो ये जॉइंट वेंचर कंपनी के थ्रू 50-50 जो जॉइंट वेंचर है, डोमेस्टिक नॉलेज, डोमेस्टिक मार्केट जो है वो हम लोग लेकर आएंगे, और ये एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस यूनिपर लेकर आएगी। और जो हमारी अभी कंपनी है उसमें तो सर्विसेज वगैरह देंगे ही, लेकिन जो इंडियन मार्केट इतनी ह्यूज है और इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको हम लोग टैप कर पाएंगे ये जॉइंट वेंचर के थ्रू। सर एग्जैक्टली कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस जेवी में? और मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा सर कि जो आपकी जनरेशन कैपेसिटी है मिस्टर कनौरिया, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल और माइट भी जो भी टारगेट्स हैं आपके अगले 1-1.5 साल में, कितना जो कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी, उसको करने की योजना है आपकी? इंडिया पावर में तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपैंड कर रहे हैं, और हमारी इंटीग्रेटेड मॉडल है। तो जनरेशन कैपेसिटी बैक टू बैक जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यूनिपर और इंडिया पावर की जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, 2 लाख मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट्स, गैस बेस्ड पावर प्लांट्स वगैरह हैं, नए पावर प्लांट्स वगैरह आ रहे हैं। तो यही सब अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग टैप करेंगे
यहाँ पर इस मार्केट के लिए इस तरह की कंपनी बहुत कम, मतलब कि ऑलमोस्ट नहीं है। तो इसी के कारण से हमें लगता है कि आगे जाकर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उसमें रहेंगे, लेकिन अभी बोलना बहुत मुश्किल है कि कितना मार्केट साइज़ बहुत ह्यूज है और कंपनीज़ कोई है नहीं, तो इस तरह से एक ऑलमोस्ट यदि देखें तो वर्जिन मार्केट ही है। सर एक और चीज़ है, पिछले काफ़ी समय से आप फंड जुटाने की काफ़ी, अगर आप देखें, महत्वपूर्ण योजनाओं पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर FY16 के अंत तक, सॉरी माफ कीजिए, FY17 के अंत तक आप ऑलमोस्ट कितना और फंड मॉप अप कर पाएंगे और किन किन जरियों के साथ? देखिए, इंडिया पावर कंपनी के हिसाब से तो अभी उसमें हम लोग फंड रेजिंग बहुत नहीं कर रहे हैं, लेकिन और भी ग्रुप में कंपनीज वगैरह हैं तो किसी में फंड रेज कर रहे हैं, किसी में नहीं कर रहे हैं। तो अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो अलग अलग बिजनेसेस की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ नहीं रेज कर रहे हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर रेज कर रहे हैं। इंडिया पावर में अभी हम लोग कोई कैपिटल रेज करने की हमारी कोई प्रोग्राम नहीं है उसमें। बिल्कुल। चलिए मिस्टर कनोरिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू वेंचर। इस बीच एक बार फिर से देख लेते हैं सारे टेलीकॉम स्टॉक्स को ही, क्योंकि देखिए बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स तो हैं ही प्रेशर में। आज रिलायंस जियो के डर के चक्कर में रिलायंस खुद भी प्रेशर में है। शायद उसका डर ये है कि जब इतनी सस्ती सेवाएं देंगे, और जो कि उन्होंने स्पीच में भी कहा कि उन्हें ऑपरेशंस जो हैं उसमें से रेवेन्यू रिकवर करने में 4-5 साल लग जाएंगे, तो ये एक फैक्टर। लेकिन आज सिमी, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू। आज जिस तरह का ब्रेकडाउन हमने बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स पर देखा है, एंड वी ऑल नो किस तरह से इनकी मार्केट कैप वाइप आउट हुई है। आइडिया एज वी स्पीक 11% नीचे है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? मीर रिसेंट पास में भी अगर देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि टेक्निकली कोई भी टेलीकॉम स्टॉक्स में बाई कॉल कोई भी दिया है टेक्निकल एनालिस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे पैरामीटर से, सारे अगर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जितना भी पैरामीटर्स है, सारे पैरामीटर से ये सब वीक ही था। और कोई भी रैली अगर 1-2 दिन के लिए मिला था तो वो भी सेल करने के लिए यूज़ हुआ था। भारती में भी एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है, आइडिया में भी आया है, रिलायंस में भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी बहुत अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि पूरा सेक्टर वीक है और टेक्निकल पैरामीटर्स में और मार्केट में बुलिशनेस है। मार्केट निफ्टी आज भी एक नया हाई पोस्ट कर सकता है, या आज नहीं तो कल दिया था एक नया हाई। अब इस बुल मार्केट में अगर कोई ऐसा स्टॉक देखने के लिए वेट करेंगे तो पूरा बुल मार्केट मिस आउट कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एटलीस्ट बाई साइड में ये सब स्टॉक देखना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म में कोई एग्रेसिव ट्रेडर है जो कि इस करेंट मार्केट में भी ये सब स्टॉक सेल करने के इच्छुक है तो वो कर सकते हैं। मुझे कोई ट्रेड नहीं देना है कोई भी टेलीकॉम स्टॉक में। सुबह आज हमने आपको टुडेज ट्रेड में दिया था BL कश्यप। अब देखिए ये स्टॉक टारगेट को ओवरशूट कर गया। एक समय अपर फ्रीज पे था, अभी करीब 24-50 पे 17-18% ऊपर कारोबार कर रहा है। सिमी, इस चार्ट को कैसे देखती हैं आप? और आई मीन नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या होंगे? 24 को पार कर चुका है। देखिए, मुझे लगता है चार्ट में रिकवरी है और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। नीचे से एक अच्छा बेस बना चुका है और नेक्स्ट टारगेट जो है मेरा नज़र में आ रहा है वो 26 के आसपास है। 2015 के दिसंबर के महीने में ये 26 के आसपास हाई बनाया था और जितना बड़ा ब्रेकआउट ये आज दिया है 24 के आसपास अभी मेंटेन भी कर रहा है। तो अगर 23 के ऊपर मेंटेन करता रहे तो 1-2 दिन में 26 तक भी ये जा सकता है। नताशा शंकर भी हमारे साथ है। नताशा, आपने सुना रिलायंस को, चलिए आज का दिन एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं रिलायंस को, क्योंकि कई बार तो जिस तरह का केपेक्स ये अनाउंस करते हैं उसी के चलते स्टॉक प्रेशर में आ जाता है, लेकिन आज ये करीब 2% नीचे है। नाउ इज़ दिस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी? आई थिंक आप रिलायंस को 2 नज़रिए से देख सकते हैं, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अगर आप मीडियम टर्म के हिसाब से देखिए तो कंपनी में काफ़ी प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना डेटा और वॉइस प्लान्स इंट्रोड्यूस करे हैं, ऐसे सिनारियों में उनके जो मार्जिन्स हैं उसको इनफैक्ट EBITDA पॉजिटिव होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से स्टॉक जो है जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है
उस पर रिटर्न्स जो है वो काफ़ी नेगेटिव रह सकते हैं एटलीस्ट फॉर अ ईयर और सो, डिपेंडिंग कि वो लोग कब तक ये जो अपनी अग्रेसिव प्राइसिंग है वो कंटिन्यू करते हैं। उसके आगे जाके अगर आप उस स्टॉक को देखिए तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी ने काफ़ी एरियाज़ में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं एंड विद द लॉन्च ऑफ जियो ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये मोनेटाइज करने का टाइम आ गया है। तो वंस दीज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव ऑन द EBITDA साइड, द स्टॉक वुड बी अ गुड स्टॉक टू हैव, लेकिन एटलीस्ट साल भर तक इसमें प्रेशर देखने को मिल सकता है गिवन दिस न्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ दिस। जी हाँ, इस बीच आप देखिए टेलीकॉम स्टॉक्स अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट डे लो पर दिन के सबसे निचले स्तरों पर है। अब ये एक सीरियस चैलेंज में है आई थिंक इन्वेस्टर के लिए भी, ट्रेडर के लिए भी। ट्रेडर तो 5 रुपये का लॉस लेकर बाहर निकल जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर क्या करें? बीते 3 साल में अगर आप देखें पैसा कभी कमाया नहीं आपने 4 साल में। आई आपकी स्क्रीन पर भारतीय एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन, सारे के सारे काउंटर्स डे लो पर है। इस बीच और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। इस बीच ये भी मत भूलिए टेलीकॉम को छोड़ के कि निफ्टी भी धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे आया है 8784। अब ऑलमोस्ट हम दिन के सबसे लोअर लेवल्स के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं? ACC, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स और साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट। एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट को भी देखते हैं एग्जैक्टली क्या कर रहा है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट इस वक्त 4 रुपये ऊपर बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन सिमी एक जो CI वाली खबर थी, इनफैक्ट कार्टलाइजेशन की जो खबर थी, उसके बाद आज सारे ही स्ट्रक्चर्स थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग में आए हैं। ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, इनमें से किस में प्रॉफिट लेके बाहर आना चाहिए इस वक्त? देखिए वीरेंद्र, मेरा मानिए और अगर शॉर्ट टर्म के नज़रिया से सोचेंगे भी तो भी मुझे लगता है कि सारे सीमेंट में ब्रेकआउट आया है ऊपर की तरफ और एक आध दिन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है क्योंकि रैली भी काफ़ी हद तक हो चुका है, पर नीचे आके वापस कंसोलिडेशन ज़रूर होगा और मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी वापस ऊपर की तरफ ही होगा। कोई भी सीमेंट में मतलब जितना भी आपने नाम लिया है ACC, अंबुजा और अल्ट्राटेक का, किसी में भी कोई वीकनेस नहीं है और शॉर्ट टर्म में जो भी डिप मिलता है वो भी खरीदने का ही मौका उसमें ढूंढना पड़ेगा। इनफैक्ट मिड कैप सीमेंट्स भी जो है, मंगलम सीमेंट, हेडलबाग, सारे में मुझे लगता है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट अभी भी है और कोई भी छोटा मोटा डिप में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, राजेश सतपुते भी इस बीच हमारे साथ है। देखिए जो हेडलाइन ग्रैबर्स है ना वो टेलीकॉम स्टॉक्स है क्योंकि वहाँ पर नुकसान सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन इसके अलावा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स, DTH सर्विस प्रोवाइडर्स, इन सबको भी आप देखिए, इन सब पर आज हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है। प्योरली जियोज़ इम्पैक्ट आज जो इन्होंने घोषणाएं की हैं उसके तहत आप देखिए बाकी सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सब पर भी अच्छा खासा नुकसान है। और राजेश, ये सिर्फ टेलीकॉम स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। जो इम्पैक्ट है वो बाकी, आप हैथवे को देखिए 5% नीचे, डेन नेटवर्क्स, डिश टीवी, इन सारे स्टॉक्स पर भी आज अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला। डिश टीवी हमारे सम्मुख की कंपनी है। GTL इंफ्रा, इनफैक्ट सारे ही जो स्टॉक्स हैं उस पर आज नुकसान देखने को मिला है। इनमें क्या करेंगे आप? अमीर, मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस जियो के अनाउंसमेंट के बाद तो डेफिनेटली ये प्रेशर मुझे लगता है कि एक बिल्ट फॉर, इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जो कॉन्ट्रा लॉन्ग थे वो जो ट्रैप हुआ है, जैसे कि रिलायंस आरकॉम की बात करें तो 54-55 के आसपास का टेक्निकल ब्रेकआउट और उसके बाद जोर से गिरा है। सेम भारती देखिए, भारती 270-280 की तरफ भाग रहा है, तो इसका मतलब इसमें करेक्शन और है। आइडिया देखिए, आइडिया 93-94 पे बात हो रही थी कि एक बार टूट सकता है, 83 का लेवल एक ही दिन में आ गया, तो मुझे लगता है आइडिया अभी भी यहाँ से रफली 13-14 रुपये और गिर सकता है। तो सेलिंग कहाँ करे वो एक कंसर्न है। न्यूज़ बेस, इवेंट बेस अगर आएगा तो डेफिनेटली बुल ट्रैप ही होंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिलहाल के लिए कॉल लेना, जैसे सिमी भी कह रही थी कि कॉल कहाँ ले, तो डेफिनेटली रनिंग फॉल में आपको कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर के सेक्टर स्ट्रिक्टली अवॉइड सेक्टर में रहेगा फिलहाल के लिए। तो इसमें लॉन्ग या कॉन्ट्रा लॉन्ग में सोचूंगा भी नहीं जब तक ये सेटल नहीं होता। मुझे लगता है अभी पेन बाकी है। वाकई इस बीच आप देखिए मार्केट्स धीरे धीरे नीचे दिन के लोअर लेवल्स की तरफ आता हुआ 8774 पे है। सिमी, प्रोटेक्टिव पुट के बारे में क्या ख्याल है आपका? हम स्ट्रेच काफ़ी हो चुके हैं हायर लेवल्स पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ वैसे, लेकिन एटलीस्ट समबडी हु इज होल्डिंग निफ्टी फ्यूचर्स इन हैंडसम क्वांटिटी, प्रोटेक्टिव पुट कहाँ पे? 86 पे जाएंगी आप, 87 पे जाएंगे एग्जैक्टली?
जी देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि पुट लेके हेज किया जा सकता है इंट्राडे का पोजीशन या शॉर्ट टर्म का पोजीशन, पर ओवरऑल अगर आप निफ्टी का व्यू मुझसे पूछेंगे तो मेरे तरफ से बाई कॉल ही मिलेगा आपको। और मुझे लगता है कि निफ्टी में अभी जहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी स्पॉट में 87-77 के आसपास आ चुका है और यहाँ पे मुझे लगता है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का सपोर्ट था, निफ्टी इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट किया था, तो अभी वही रेंज निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा। और मैंने जो निफ्टी के लिए मैंने जो व्यू रखा है, मुझे लगता है कि 8760 तक निफ्टी का ये फॉल जा सकता है और 8760 8770 के बीच में निफ्टी को वापस खरीदारी करने में मज़ा है, क्योंकि टारगेट 8840 8850 का भी रख सकते हैं, थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस के साथ। वाइड नहीं, मतलब जहाँ पे अभी निफ्टी है यहाँ से अगर स्टॉप लॉस मैं देने जाऊँगी तो 8740 या 8735 से नीचे वापस स्टॉप लॉस लगा के मैं लॉन्ग जाने का ही सलाह दूंगी। मेरे तरफ से वापस लॉन्ग का ही सलाह मिलेगा और कल तक का टारगेट 8840 8850 का होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी में आया है 8700 से ऊपर, अभी बहुत जल्दी निफ्टी दोबारा 8700 का मुंह दिखेगा नहीं। उससे पहले एक बार निफ्टी ऊपर में 8850 तक तो ज़रूर जाएगा और वहाँ पे जाके कंसोलिडेट करने के बाद दूसरा कोई डायरेक्शन मिलता है कि नहीं वो देखने को मिलेगा। अभी भी मुझे लगता है कि एग्रेसिव ट्रेडर अगर कोई है तो करंट लेवल पे जहाँ पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ रिस्क को कंट्रोल करके लॉन्ग जाने में ही भला है, क्योंकि मुझे लगता है कि 8840 8850 का लेवल बहुत जल्दी निफ्टी में आ सकता है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच निफ्टी इटसेल्फ 21 पॉइंट नीचे 8765 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस गिरावट के बाद भी आउट परफॉर्मेंस जहां पर है इसमें गेल, ICICI, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC लिमिटेड, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। टाटा मोटर्स करीब 1% ऊपर है। इनफैक्ट पूरा ऑटो स्पेस अच्छा मूव दे रहा है। और मारुति पर अभी खबर भी आई है कि इन्होंने LCV सेगमेंट में एंट्री कर ली है और गुजरात में इन्होंने अपने सबसे पहली जो LCV है उसे लॉन्च किया। LCV की बिक्री इन्होंने शुरू की है। हालांकि आज थोड़ा सा ये काउंटर पिछड़ते हुए कंपेयर टू टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा, लेकिन सुपर कैरी के नाम से इन्होंने एक नई LCV लॉन्च की है। राजेश, मारुति पर आपकी क्या सलाह है? मीर, मुझे लगता है कि अबव 5000 काउंटर एक्सट्रीमली हेवी है, एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग डेफिनेटली ना करें। मुझे लगता है यहाँ से मारुति में एक करेक्शन आएगा। टेक्निकली भी अगर इसे देखो तो इसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हालांकि दिस इज एन अर्ली इंडिकेशन, बट ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द लेवल टू बाय, दिस इज लेवल टू टेक सम प्रॉफिट होम। मुझे लगता है यहाँ पे मारुति में करेक्शन अगर आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर 4950 के आसपास का जो लेवल है वो अगर तोड़ेगा तो यहाँ पे मारुति में अच्छी सेलिंग दिखी जा सकती है। रफली 4500 तक का टारगेट मेरा जो है वो टेक्निकली बनता है। कुछ सारे स्टॉक्स को और देखते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार आप निफ्टी बैंक को देखिए। इस वक्त निफ्टी बैंक वैसे टूटा है बहुत नहीं, लेकिन हाँ 19787 इंपॉर्टेंट क्लस्टर इसके लिए याद रखिएगा 19600 का है। और अगर आप निफ्टी को देखें, इसी के चलते अगर आप देखें वो भी दबाव में आए और अब निफ्टी डे लो पर 8766 पर। जरा प्लीज़ एक बार लूजर्स दिखाएंगे प्रेशर पॉइंट्स मार्केट्स के क्या क्या हैं इस वक्त। और अगर आप प्रेशर पॉइंट्स को देखें तो इस वक्त आइडिया, भारती, दोनों स्टॉक आइडिया 10% नीचे में 8395 पे, भारती एयरटेल 21 रुपये नीचे, और उसके बाद BPCL को देखिए ये करीब 584 पे 18 रुपये नीचे। रिलायंस इंडस्ट्री इटसेल्फ अगर आप देखिए, रिलायंस इज डे लो 32 रुपये नीचे। तो मेहर एक बार फिर से वही इवेंट से पहले जोर शोर, लेकिन बाद में आप देखिए तो इवेंट के पहले भी ज़्यादा जोर शोर नहीं था, लेकिन कम से कम ये है कि नाउ पीपल नो कि ये इस तारीख को लॉन्च होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से यही आ रहा था कि इस पर बड़ा फोकस है इस पूरे बिजनेस पर, और वो उस तरह की बातें होती एक बात है, पहली बार डेफिनेटिव टाइमलाइन आई है। एक बात है, मैं भी कुछ देर पहले IFL के एक विशेषज्ञ थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि ठीक है बॉस, टैरिफ तो आपने बता दिया सबसे लो, लेकिन ये इटसेल्फ आपके लिए भी एक बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। मार्केट इससे चिंतित होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप जो केपेक्स आपने किया है उसे रिकवर करने में और इस वर्टिकल को प्रॉफिटेबल बनाने में भी आपको उतना ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपने जो फिच की बात कही थी उसमें आई थिंक यही तो बात थी कि उन्होंने कहा कि हमारी जो सोच थी उससे भी कहीं ज़्यादा ये टैरिफ 25 से 30% नीचे है, जो कि एक एस्टिमेट था इंडस्ट्री का कि इतने हो सकते हैं, उससे 25 से 30। तो ये प्राइस वॉर है बेसिकली, प्राइस एंड डेटा वॉर। खैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल रिलायंस इटसेल्फ इंट्राडे लो पर। शॉर्ट टर्म में आपका व्यू सिमी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या है? इंट्राडे लो पर इस समय काउंटर 32 रुपये नीचे।
देखिए मिहिर, जो अनाउंसमेंट आज हुआ उसके बाद सारे को सबको मालूम है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, मीडियम टर्म में भी पैसा बनाने में कितना प्रेशर इसको फेस करना पड़ेगा। तो जो ट्रेडर है तो वो ये ऐसा न्यूज़ सुन के इतना, देखिए जो अट्रैक्टिव रेट्स मिला है वो एक जो सर्विस जो ले रहा है उनके लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव ऑफर हो सकता है, पर स्टॉक होल्डर के लिए नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए कोई भी ट्रेडर अब रिलायंस में बैठेगा, क्योंकि जितना बड़ा न्यूज़ आया है उसके बाद मुझे लगता है कि अभी तो इसको अवॉइड करना है, लेट इट सेटल फर्स्ट। आप देखते हैं क्योंकि ये ऊपर में 1070 से 50 का लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। अब अनाउंसमेंट के बाद 50 का लेवल तोड़ा, अभी ये 40 का लेवल भी तोड़ दिया है। अब ब्रेकआउट नीचे की तरफ होने का पूरा चांसेस है। और मानो के जो 1010-20 के ऊपर से इसमें जो ब्रेकआउट आया था, अगर कोई भी कारण से 1010-20 का सपोर्ट टूट गया तो ये वापस आके 980-970 के बीच में आके बैठ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड तो नज़र में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सपोर्ट होल्ड कर रहा था एक बार 1010-20 का ब्रेकआउट के बाद ये 40-50 का सपोर्ट ले रहा था, अब वो सपोर्ट टूट गया, न्यूज़ भी मार्केट में आ गया। अब आने में तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड तो नज़र में नहीं आ रहा है, सिर्फ नेगेटिव साइड में ही आ रहा है। 1010 का इनिशियल सपोर्ट, वो सपोर्ट अगर टूट गया तो मानो 980-970 तक जा सकता है रिलायंस। बिल्कुल, तो 980-970 तक ही जा सकता है। चलिए थोड़ा इससे हटकर कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। आज अब इस समय एज वी स्पीक जो काउंटर्स अपने हाई पर खड़े हैं उन स्टॉक्स को देख लेते हैं। आज इंफ्रा स्टॉक्स में हमने अच्छा मुंह देखा था, तो सद्भाव इंफ्रा अभी भी 13% ऊपर है। हमने HCC पर देखा था, आज काफ़ी अच्छा मुंह देखने को मिला था, हालांकि वो हाई से अब नीचे आया है, लेकिन सद्भाव ने अभी भी होल्ड किया है। और HCC अब करीब 19% ऊपर इस समय 32 के आसपास ट्रेड करते हुए। तो इनफैक्ट ये भी अभी भी हाई लेवल पे। NCC पर हमने अच्छा मुंह देखा। पुंज लॉयड और एक काउंटर है जो कि करीब 4.5% ऊपर ट्रेड करते हुए। इसमें नताशा, नाउ यू नो वी नो दैट देयर इज़ अ इशू ऑफ डेट ऑन दी स्टॉक्स, लेकिन कल की सरकार की घोषणा के बाद अब आप HCC, सद्भाव इंफ्रा इन स्टॉक्स पर क्या सलाह देंगे? जो कल का न्यूज़ आया है बाय द गवर्नमेंट कि जितना भी आर्बिट्रेशन में इनका जो फंड्स फंसा हुआ है कंपनी का, वो उसके ऊपर एक उनको रिलीफ मिल सकता है। दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द एंटायर सेक्टर, पर्टिकुलरली जो उन कंपनीज के लिए जिनका कि डेट लेवल काफ़ी हाई है। कीपिंग दैट इन माइंड, सारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन हम लोग का उसमें टॉपिक जो है इस समय PNC इंफ्राटेक है। कंपनी के पास ज़्यादा डेट नहीं है। कंपनी ने रिसेंटली IPO निकाला था, जिसकी वजह से उनके पास कैश फंड्स हैं जो कि उनको एग्जीक्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह से उनको ऑर्डर्स मिले हैं इन द रीसेंट पास्ट, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली विद सद्भाव इंजीनियरिंग वी आर न्यूट्रल ऑन द स्टॉक एज ऑफ नाउ, क्योंकि उसके जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं एट दीज लेवल्स। और कुछ तरफ स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट है। सुबह चर्चा भी कर रहा था मैं इस स्टॉक की, PC ज्वेलर्स। राजेश, इस स्ट्रक्चर पे आपकी राय? आई मीन हल्का सा वॉल्यूम इशू होता था इसमें, लेकिन सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स नाउ, और कैश में भी देखिए 5.25 लाख शुरू का कारोबार अब तक हो चुका है। अभी टारगेट्स क्या होंगे राजेश आपके इस स्टॉक में? वीरेंद्र, देखिए PC ज्वेलर्स का अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म चार्ट देखें, डेली चार्ट जो मैं देखता हूँ, उसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट है PC ज्वेलर्स ने रफली 440-41 के आसपास का इसका स्तर था। एक कंसोलिडेशन है, आप इसे शॉर्ट टर्म ट्रायंगल भी कह सकते हैं। उसका रफली जो टारगेट बनेगा वो रफली रहेगा 474-475। प्योरली अगर आज के या आप BTST के तौर पे सोचो तो इसका स्टॉप लॉस आपको 441 का मेंटेन करना पड़ेगा। अपसाइड में मैंने जैसे कहा 470 का टारगेट लेके चलिए। बिल्कुल। इस बीच हमने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी खबर की बात की थी। इस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली इसी पर बात कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। So that the dues of the banks to some extent could be discharged and the projects itself completed, which in turn will have an impact both on the banking system and the economy itself. This is a proactive step that the government has taken. With regard to that section, earlier to that we amended the arbitration law to provide for a cheaper and a fast-track arbitration so that the dispute redressal mechanism itself could be quickly and hastily adjudicated. The steel sector, where the entire world is facing the challenge of excess capacities,
And one of the side effects of the excess capacity is that cheaper steel at below the cost prices flows into various jurisdictions. We are not the only country being impacted by it. Countries across the world, in Europe, United States, everybody's been impacted by it. And therefore, a couple of months ago, we took the proactive step of making sure that the capacity of our own steel companies increases by the imposition of the minimum import price itself. And that has impacted to some extent the मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन दैट सेक्टर। तो ये थे वित्त मंत्री अरुण जेटली इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन की एनुअल मीटिंग में बात करते हुए।